جی جناب ڈاکٹر مہیش کمار ملانی صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. آج مجھے ایک بہت امپورٹنٹ ایگریکلچر کے مسئلے پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. یقیناً ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے, ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے, اور میں مشکور ہوں اسپیکر صاحب کا بھی جس نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ 2 دن رکھے ہیں بات کرنے کے حوالے سے. اور یہ کہنا کہ یہ پیورلی پروونشل سبجیکٹ ہے تو میں کہوں گا پروونشل نہیں ہے, اس کی افادیت ہے, اس کی امپورٹنس ہے, تب یہ یہاں بحث کیا جا رہا ہے. ایگریکلچر پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی پروونس کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو سیاست کرنی نہیں چاہیے. ایگریکلچر اور ہیلتھ یہ دونوں ایسے چیزیں ہیں جس پہ مل کے کام کرنا چاہیے. اور یہ جو 2 دن سے ایگریکلچر پہ بحث ہو رہا ہے تو یقیناً اس بحث کا فائدہ ملنا چاہیے, ایک پالیسی بننی چاہیے. اس پالیسی کے تحت پروونس سے بھی کانٹیکٹ کیا جائے, ان سے مل کے ایک اچھی سی پالیسی بنائے جو ایگریکلچر جو ہے وہ بوسٹ ہو سکے. جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ایگریکلچر پہ بہت دھیان دیا جاتا ہے. پہلے 18th امینڈمنٹ سے پہلے جب 93 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تب زراعت پہ کافی دھیان دیا گیا تھا, ٹریکٹر اسکیم یہ, اور کافی جو کاشتکار کو بوسٹ کیا گیا تھا, زمیندار کو بوسٹ کیا گیا تھا, فصلیں بڑھائی گئی تھی. 18th امینڈمنٹ کے بعد 2013 کی گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی, اور 2008 کی گورنمنٹ میں بھی گندم جو پہلے 700-800 روپے من کے حساب سے تھی تو اس کو بھی بوسٹ کر کے 1200-1300 روپے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا. ابھی اس 2 سال میں ایگریکلچر پہ دھیان نہیں دیا گیا ہے, لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ بحث ہو رہا ہے تو یقیناً ایک پالیسی بنے گی اور ایگریکلچر کو بوسٹ کیا جائے گا. اس بجٹ میں بھی ایگریکلچر کے حوالے سے سبسڈی نہیں دی گئی ہے, بجٹ میں زیادہ رقم نہیں رکھی گئی ہے. میری یہ آج اس بحث کے حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ اس میں زیادہ سبسڈی دی جائے, اور جو دوائیں ہیں جو یوز ہوتی ہیں فصل کے لیے تو وہ دوائیں 2 نمبر ہیں تو وہ 2 نمبر نہیں ہونی چاہیے, اور اس پہ جو سبسڈی رکھی ہے وہ زیادہ سبسڈی دینی چاہیے. جیسے کہ ابھی یہاں گنے کا فصل ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, اور ویٹ کا فصل ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. انڈسٹریز جو ہیں اس پہ انڈسٹری زون بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو میں یہ سجیشن دوں گا اس گورنمنٹ کو کہ آپ کو ایگریکلچر زون کے حوالے سے, ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے دھیان دینا چاہیے. میں جہاں ایک آنریبل ممبر نے ایک مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کی تھی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, تو میں کبھی بھی سندھ کی عوام, کے پی کی عوام اور بلوچستان کی عوام یہ زندہ ہونا نہیں دیں گے. کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ کالا باغ ڈیم سے پوری تینوں صوبوں کی زمینیں بنجر بن جائیں گی, تو اس حوالے سے اس کی زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے. میرا تعلق تھرپارکر ڈسٹرکٹ سے ہے. وہاں تھرپارکر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پورا بارانی ہے, تو بارانی کے حوالے سے کافی پاکستان میں علاقے ہیں جو بارانی علاقے ہیں, جیسے تھرپارکر, سانگڑ ہے اور رحیم یار خان ہے. پنجاب کے کافی علاقے ہیں, بلوچستان کی اپنی ایک جابلو علاقے ہیں. تو یہ 2-3 طریقے ہیں ہمارے زمینوں کے. جابلو علاقے ہیں, ریور کینالز پہ ہیں, اور بارانی پہ ہے. تو بارانی کے بھی وہاں بھی کسان رہتے ہیں, وہاں زمیندار ہیں, وہاں کافی وہاں جو ہے وہ واپار ہوتا ہے. کافی چیزیں جو ہیں تھرپارکر کی جیسے بارانی زمین ہے, وہ زمین پورے میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ جو اریگیٹڈ ایریاز ہے, ریور کینالز کے پاس جو زمین ہے اس سے بھی وہ زمینیں اچھی زمین ہے. وہ ایسی زمین ہے جہاں پیسٹیسائڈ کی بھی
जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ भी इस गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ एक हमारे ऑनरेबल मेंबर ने बात की थी कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से, कि फूड सिक्योरिटी का असल, अगर फूड सिक्योरिटी को देखा जाए तो उसका इम्पोर्टेंस है ही बारानी इलाकों में और खास करके थरपारकर के इलाकों में। वहाँ जो है वो स्टैंड के हवाले से वहाँ रोजगार जो है, वहाँ लोगों का पूरा रोजगार जो है वो बारानी जो फसल है उस पे है। वहाँ भी काफी फसल होते हैं, वहाँ लेंटिल्स दालें काफी वहाँ होती हैं, वहाँ बाजरा होता है, वहाँ ग्वार होता है जिससे काफी चीजें जो है बनती हैं उससे, और उससे बिलियंस के वहाँ कारोबार होते हैं। अगर वहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल में काफी वहाँ फार्मर्स को फायदा हो सकता है। उस हवाले से मेरे सजेशंस हैं और ये सजेशंस इस पॉलिसी में डालनी चाहिए। वो बारानी इलाकों के हवाले से है कि वहाँ पानी का एक तो बारिशों का सोर्स है, तो अगर बारिशें नहीं है तो वहाँ पानी मौजूद है। वहाँ के जो का पानी है उस पानी से 30% जो एरिया है बारानी इलाकों में उसमें इजीली जो है कल्टीवेशन हो सकती है। उस कल्टीवेशन के हवाले से सिर्फ पॉलिसी की जरूरत है। वहाँ मैं एक ये हुकूमत को भी कहूँगा कि आपका भी सिंध भी आपका हिस्सा है, फेडरल गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि वहाँ ध्यान दिया जाए कि वहाँ अगर वहाँ पानी जो है, पानी 30% जो पानी है उस पर कल्टीवेशन हो सकती है। वो पानी तकरीबन जो है वो 200 फीट नीचे पानी है और उसकी टीडीएस जो है वो 3000, 4000 या 5000 उसकी टीडीएस है। उससे काफी फसल हो सकते हैं। उसमें लेंटिल्स भी होते हैं, उसमें ओनियन भी होती है, उससे वीट भी होती है। वहाँ ऐसा भी पानी है काफी 2-3 यूनियन काउंसिल्स में जिसमें आम भी हो सकते हैं और काफी ऐसे जैतून भी वहाँ हो सकते हैं। तो उसके हवाले से ध्यान देना चाहिए। वहाँ सोलर पंप जो है उनकी जरूरत है। सोलर पंप के हवाले से सोचा जाए। वहाँ सोलर पंप्स जो हैं उस पे लोग जो बेचारे लगा रहे हैं, उसमें एक सोलर पंप पे वो जो सीपेज वाटर है वो तकरीबन 20-25 फुट पे सीपेज वाटर मीठा पानी मौजूद है और उस सोलर पंप से वो तकरीबन 2-3 एकड़ वहाँ आबाद कर लेते हैं और उससे वहाँ ओनियन भी होती है, वहाँ वीट भी होता है। अगर उस एरिया में ये सोलर पंप सिस्टम दिया जाए तो भी वहाँ काफी उनके लिए 3-4 एकड़ जो है ना वो भी गरीबों के लिए काफी उनके लिए इनकम हो सकती है। और ट्यूबवेल्स जो हैं वो उस पे भी काफी, अगर वो नीचे 700-800 फुट या 1000 फीट तक नीचे जाए तो वहाँ 3000, 4000, 5000 टीडीएस का पानी है। उससे 20-25 एकड़ जमीन जो है एक ट्यूबवेल से आबाद कर सकते हैं। उसमें सब सब्जियां भी हो सकती हैं और सब अनाज भी हो सकता है, कारोबार भी हो सकता है। तो उसके हवाले से ट्यूबवेल जो भी लगाए अगर वहाँ, तो उनको कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में उनको ट्रांसफार्मर या कनेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी कम है तो वहाँ उनको सोलर के हवाले से एनर्जी दी जाए तो वहाँ कल्टीवेशन इजीली हो सकती है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि उस पॉलिसी में ये ट्यूबवेल सोलर सिस्टम के हवाले से वहाँ ध्यान दिया जाए। वहाँ एग्रीकल्चर बैंक है, वहाँ बैंक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो अगर वो सोलर लगाना चाहे तो उनको सोलर को सब्सिडी भी देनी चाहिए और वहाँ से लोन भी दिया जाए जो वो आराम से सोलर, क्योंकि वहाँ तकरीबन 80% जो एरिया है जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ सोलर के हवाले से ये कल्टीवेशन वहाँ हो सकती है। बारिशों में जब बारिश आती है तो वहाँ कम से कम 20 से 25 बिलियंस की वहाँ कारोबार होता है सिर्फ ये अनाज से। और पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट में लाइव स्टॉक जो है वो 75 लाख लाइव स्टॉक है वहाँ। तो लाइव स्टॉक उनके लिए भी वहाँ बहुत जरूरी है कि ग्रास वहाँ हो, सिर्फ बारिशों में ग्रास नहीं। आप अगर सिस्टम ये सोलर सिस्टम, सोलर पंप्स और ट्यूबवेल सिस्टम अगर वहाँ आप दें तो उससे ग्रास भी बन सकता है।
ग्रास वहाँ कल्टीवेट हो सकता है। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि काफी आपकी स्टडी चल रही है, चाइना से स्टडी चल रही है, तो उस स्टडी में आप काफी ऐसे बीज आते हैं जिससे वो कल्टीवेशन में वो ज्यादा कल्टीवेट हो सकता है, उस बीज को भी मुतारफ किया जाए। और ऐसे काफी बीज आते हैं जो वहाँ ग्रास के हवाले से भी बीज आते हैं, ग्रास इस टाइप के आते हैं जो आराम से बारानी एरियाज में वहाँ कल्टीवेट इस पानी से हम कर सकते हैं। तो उस ग्रास में ये फायदा होगा कि जो वहाँ लाइव स्टॉक है वो लाइव स्टॉक वो उनको खुराक मिल सकती है वहाँ, उससे काफी फायदा हो सकता है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च बारानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से भी गुजारिश करूंगा कि इस पॉलिसी में वो स्पेशली फॉर बारानी एरियाज, उसमें पूरे आप पाकिस्तान के बारानी एरियाज ले सकते हैं, तो उसमें उसका मेन जो इलाका है वो थरपारकर है, उनको यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी वहाँ होनी चाहिए, वहाँ करें उसको, वो आराम से वहाँ रिसर्च भी हो सकती है। सीड्स के हवाले से भी वहाँ काफी देखा जा सकता है जो शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब। थोड़ा सा जी एग्रीकल्चर के हवाले से मेन अभी जो या हमारे के हवाले से या लोकस्ट का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। लोकस्ट से हमारी एग्रीकल्चर तबाह होगी, और लोकस्ट के हवाले से मैं इस हवाले से कह रहा हूं आपको कि लोकस्ट की ज्यादातर काम करने का है ही थरपारकर में काम, क्योंकि वहां जब बारिशें पड़ती हैं तो वहां लोकस्ट का जो ब्रीडिंग है वो होती ही थरपारकर में है। तो उस ब्रीडिंग को आप खत्म करने के हवाले से अभी बारिशों की सीजन है, अभी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी वहां आपको एरियल अगर स्प्रे कराए हैं या कोई भी तरीका निकाले हैं, वहीं अगर जो ब्रीडिंग है वह लावा है वो खत्म अगर करेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान में ये लोकस्ट का जो है ये आपको फायदा देगा, लोकस्ट खत्म होगी। तो थरपारकर पे आपको लोकस्ट के हवाले से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी जी जनाब मोहतरम तारिक इकबाल चौधरी साहब।